गुड मॉर्निंग, वेलकम टू संज्ञान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आज का होने वाला है हमारा दूसरा दिन मनाली में एंड बस सो के उठ के बस हम लोग अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए एंड हमारा ब्रेकफास्ट इस होटल में ऑलरेडी इंक्लूडेड था। वो एक बूफे ब्रेकफास्ट होने वाला है। वो करके मोस्ट अवेटेड मेरा रूम टूर मैं ज़रूर से दूंगी आपको, बिकॉज मैं होटल आ गई लेकिन मैंने आपको सिर्फ बाहर से ही दिखाया है। अगर जो भी रीसेंट व्लॉग मैंने पोस्ट किया है, इफ़ यू हैवंट सीन दैट, प्लीज़ गो अहेड एंड चेक आउट दैट व्लॉग बिकॉज दैट इंक्लूड्स माई ट्रैवल जर्नी टू मनाली। एंड अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। वापस आके मैं आपको रूम टूर ज़रूर दूंगी और इस वाले व्लॉग में मैं आपको वो सारी जगह दिखाऊंगी जहाँ पे मैं विजिट करने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस व्लॉग गाइस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट डन सो एंड प्लीज़ सपोर्ट गाइस एज यू हैव बीन डूइंग एज ऑफ नाउ। एंड मैं चलती हूँ जल्दी से ब्रेकफास्ट करने के लिए और आपको भी दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में आज क्या है हमारे लिए। Hi guys, welcome back again. We are done with our breakfast and I have just got ready to go out. Today's plan is to go to Mall Road and Hidimba Temple if possible. So we will explore. We have just hired a scooty जो कि हमें रेंट पे पड़ी है, कुछ 700 रुपीज़ पर स्कूटी रेंट पे पड़ी है। बिकॉज गाड़ी को मॉल रोड पे लेके जाना इज़ लाइक फंसने वाली बात है, बिकॉज वी हैव सो मच ट्रैफिक ऑन द मॉल रोड की बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। And I thought of giving you a room tour at this point. However, my room is just a mess at this point. मैं क्लीन करवा के इवनिंग में जब मैं वापस आऊँगी घूम के, तो मैं आपको ज़रूर से एक अपना रूम टूर दूँगी because this room is literally beautiful. And if I tell you about the view which we have got from our balcony, it's just amazing. So I would certainly give you a room tour once I'm back. And so I'll just show you my outfit as well, what I'm wearing for the day. So guys, this is the outfit for the day. And if you would have seen my Myntra haul video, in that case I have just shown this outfit on that haul as well. And I'm just wearing jumpsuit which is going to be very much comfortable for today. So yeah, that's the outfit for the day and I'm ready to go out now. And I'll meet you guys once I'm back in the evening, and also would show you what all places I would be visiting in Mall Road and what all other places I would be visiting too. So please stay tuned. Guys, ये morning का view है and look at the weather guys. I mean, I sometimes just feel so mesmerized by this view. Look at this and I mean, यहाँ पे आपको इतनी शांति मिलेगी ना. I mean, we do travel because we want to be in peace for some time. And honestly, यहाँ पे बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं है and सिर्फ आपको यहाँ पे पानी की आवाज़ सुनाई देगी. And look at that flowing water guys, how good it looks. I mean, अभी ये है ब्यास रिवर एंड अगर आप इसकी लिटरली अगर इसका फ्लो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, I mean, जिस एरिया पे हम लोग अभी हैं यहाँ पे राफ्टिंग तो नहीं होती है, बट the rafting just happens like 1 to 2 kilometers away from our hotel. And if I talk about the mall road is just 12 minutes away from our hotel. And I wanted this kind of view particularly guys because मेरे को ना बहुत अब शोर शराबा में नहीं रहना था. I didn't wanted to be in mall road because मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत आवाज़ आने वाली है लोगों की. So इसलिए I chose this hotel. And I'm just loving this because I have got both the views of mountains and river and also peace guys. So I'm just loving this guys and I'm going to miss this trip a lot. And सामने अगर आप देखोगे तो सामने ना वो भी है, I mean हाईवे भी है जहाँ पे आप गाड़ियों को आते जाते देख सकते हो. But there is no sound, nothing apart from the sound of the river guys. And this resort is even so beautiful ना कि आपको इतना अच्छा सा लगेगा. बिल्कुल लकड़ी से बनाया हुआ है, जितना काम किया गया सब लकड़ी का काम है यहाँ पे. And look at this, the balcony is even so vast. अगर आपको चाहिए तो आप टेबल चेयर यहाँ पे लगा के आप बैठ सकते हो. Even you have got tables near the river जहाँ पे आप लिटरली बैठ सकते हो. वहाँ पे सामने कैफेटेरिया भी है, वहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो. वहाँ पे अगर टेबल्स आपको दिख रहे हैं
ये टेबल चेयर्स रखे हुए, आप कुछ भी शाम के टाइम पे मैगी वगैरह भी ऑर्डर कर सकते हो। इवन इफ़ आई टॉक एट दी लॉन एरिया इज़ ऑल्सो सो ह्यूज कि आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो वो लिटरली बहुत इन्जॉय करने वाले हैं, बिकॉज वी हैव गॉट स्विंग्स एज वेल, तो उनको बहुत अच्छा लगने वाला है ऑनेस्टली। एंड इफ़ आई शो यू द बैक व्यू ऑफ दिस होटल, दिस इज़ गोइंग टू बी द बैक व्यू गाइज, wherein we just can see mountains with some clouds. Love this and most recommended hotel, guys. So guys, we are leaving and ये रही मेरी भौजाई जो कि मेरी तरह एक जंप सूट पहनी है। ये पंकज भाई सेट टू गो। स्कूटी चलाने वाले, हेलमेट लगाने से पहले इन्होंने अपने सर पे रुमाल बांध दिए, ऐसा लग रहा है गुरुद्वारा जाने वाला है। एंड वो मेरी छोटी सी हीरोइन आलिया भट्ट, मीशू। मीशू पीछे देखो, हाय, से हाय टू एवरीवन। मीशू, बहुत सारे लोग देखेंगे आपको। मुझे पता था कि जाते टाइम मुझे हेलमेट लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने सिर्फ चोटी बनाई है, क्योंकि लिटरली हेलमेट लगा के हम एलियन की तरह लगते हैं। बट लगाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे चालान भी हो जाता है। तो जब आप स्कूटी रेंट करोगे तो फिर आपको हेलमेट भी उसके साथ ही देंगे वो। सो लेट्स गो। ये है हमारी स्कूटी जो हमने हायर किया है, दोनों। ये नहीं लगा पाओगी क्योंकि इसमें ना ये है, ये नहीं आएगा। मैं लगाऊंगी छोटी वाली हेलमेट, जिसमें एटलीस्ट मेरा मुंह कवर्ड नहीं रहेगा और मैं एलियन की तरह नहीं दिखूंगी। आगे से खुला हेलमेट चाहिए था। गाल जो है ना तो लगा देना। बधाई आगे होके थोड़ा सा बैठो तो आपका पैर उस पे आ जाएगा, और तुम आप थोड़ा सा और आगे होके बैठो ना। ये But it's fun to go on a scooty. ओके सर, ओके, थैंक यू भैया। पूरे बादल ऐसा लग रहे हैं कि ट्रैफिक अपडेट की बात करूं, अभी तक तो ट्रैफिक नहीं है। इट्स गोइंग टू टेक 12 मिनट्स फॉर अस टू रीच मनाली। तो मैं आपको ऊपर पहुंच के अपडेट करती हूँ क्या अपडेट है। हल्का फुल्का ट्रैफिक तो मुझे दिख रहा है आगे, लेकिन मूविंग ट्रैफिक है अभी तक। हम बस पहुंच गए हिडिंबा टेम्पल। एंड अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये है हिडिंबा टेम्पल का एंट्रेंस। हमने अपनी स्कूटी जस्ट अभी पार्क की है। मैं भी आपको अंदर से दिखाती हूँ कि हिडिंबा टेम्पल कैसे दिखता है। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे जब आओगे गाइस तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे पार्किंग एरिया है, यहाँ पे मंदिर जाने की जगह है। को देखो कितना अच्छा। सो गाइस दैट इज़ पेड। अगर हमें उसकी वीडियो या फ़ोटो लेना है तो फिर हमें पे करना पड़ता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बहुत क्यूट ऐसे बहुत सारे जगह आपको दिखेंगे जहाँ पे ये लेके चलते रहते हैं। दिस इज़ वन टेम्पल आई गेस। इसके बाद हिडिंबा जाने के लिए हमें उस साइड से जाना होगा। यहाँ पे छोटे छोटे से स्टॉल्स हैं, अगर आपको कुछ परचेज़ करना है तो आप पीछे शॉप से परचेज़ भी कर सकते हैं। दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर हिडिंबा गाइस। यहाँ पे याक राइड वगैरह भी होती है। इफ़ यू वुड सी थोड़ा सा आगे जाके यू हैव सम छोटे छोटे शॉप्स। एंड मैडम जी कितना ट्राई किया? हेलो मैम। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे याक राइड भी होता है। छोटे छोटे से गेम। 300 पार गिर गए, 550 की गेम है। यहाँ से मारो 550 की गेम है भाई। चलो जी 50 की गेम है। कितनी है? हाँ 50 की गेम होती है। 50 रुपए देना है आपको अगर नहीं हुआ कुछ। हाँ जी। क्या मारना है? क्या मारे गिर के 300 और 500 भाई। क्या ये ऐसे गिर के 300 रुपए, नीचे गिर के 500, सारे ग्लास नीचे गिर के 500 रुपए। बस ये बॉल से मार देना, बॉल से मार के ग्लास गिराने, बस कुछ नहीं करना। चलो आई होप इसमें अगर सारे ग्लास गिरा देते हो और नीचे गिरते हैं तो फिर 500 रुपीज़। 50 रुपये हो गया।
बाकी कितना है सर 300 नीचे जाता है 500 अब बस 100 से ज़्यादा मत यार शॉट मारा सर मस्त मारा अब हमको दो गाइस अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट बिकॉज एक ग्लास रह गया था। अगर सारे ग्लासेस गिर जाएंगे तो यू विल गेट 500 रुपीज़। एक हाथ से मारना है नीचे गिरेगा तो टेबल पे सारे ग्लासेस गिरते तो यू विल गेट 300 रुपीज़। आई होप ही वंस। अनफॉर्चुनेटली वी वर अनलकी। बस 100 हो गए आपके चलिए अब ला दे देते हैं ये गेम्स इसलिए बनाते हैं। और लुक एट दिस यार गाइस, सो क्यूट। मिशु ये नहीं कर सकते तुम, ये बड़े बेबीज कर सकते हैं। और इतना सुंदर है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये आई गेस पाइन ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज। और यहाँ पे बहुत छाया है अगर आप अंदर जाओगे एंड यू कैन प्ले सम गेम्स जाते टाइम। क्या लेना है आपके साथ थोड़ा फॉरेनर्स वगैरह भी काफ़ी यहाँ पे आते हैं। कितने सियाक। चला नहीं पाओगी आओ यहाँ पे सारे गेम्स। चलो अब मैं आपको टेंपल के अंदर दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है टेंपल। एंड अगेन वो खरगोश वाली आंटी मुझे दिख गई। आज मीशू ने खरगोश लेके फोटो खिंचाई लिया एंड शी वाज लुकिंग सो क्यूट एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस रैबिट गाइस, क्यूट लग रहा है। इधर तो बोल हाथ देखिए हो रहा है अरे गिराना नहीं है मीशू। स्माइल करो, स्माइल। बैठ जाओ उसको ले जाओ। नहीं नहीं बेटा बैठ, फिर छूट जाएगा उससे। नहीं बैठना। अरे खींच लो यार कितने कितने देर से खींच राइट हैंड साइड में गाइस आपको इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स मिलेंगे और आगे जाके आई कैन सी दैट इज हिडिंबा टेम्पल। और काफ़ी भीड़ लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे। आओ चलो आओ टेंपल आ जाओ। दिस इज द व्यू। राइट हैंड साइड में इतना सुंदर व्यू है, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स दिखेंगे आपको, ब्लू कलर के वो भी। हमने यहाँ से एक स्टॉल लिया जो कि हमें 100 रुपीज़ का पड़ रहा है एंड इट वाज सो कलरफुल, बहुत अच्छा सा लग रहा था। सो हमने यहाँ से 2 स्टॉल लिया और ऐसे आपको बहुत सारे शॉप्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप परचेस कर सकते हो ये सब। ये है हिडिंबा टेम्पल एंड आप अगर इसकी भीड़ देखोगे तो लिटरली इतनी लंबी लाइन है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसमें दर्शन करने के लिए। एंड इसके पास अगर आप देखोगे तो बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाके आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। सो दीज आर द व्यू पॉइंट्स। सामने से इसका अगर व्यू आप देखोगे तो सामने से ये कुछ ऐसा दिखता है। ये है सोलांग वैली। यहाँ का वेदर तो बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं पड़ रही है। अगर आपको पैराग्लाइडिंग वगैरह करना है तो आप आ सकते हो यहाँ पे। हम स्कूटी से यहाँ पे आए थे सोलांग वैली में। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग है, प्लस अंजनी महादेव टेम्पल है जो कि आप ATV राइड से आप जा सकते हो क्योंकि वो ऑफ रोडिंग में आपको लेके जाता है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं मैगी खाने के लिए और ये रही हमारी मैगी। So guys, we are back. We went to Hidimba Temple and Solang Valley और अभी हम अपने होटल में वापस आ गए हैं एंड क्योंकि हमारी रूम की क्लीनिंग हो गई, आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ रूम टूर एज वेल। सो लेट्स गो एंड आई विल क्विकली गिव यू अ रूम टूर। दिस इज़ गोइंग टू बी द एंट्रेंस ऑफ आवर होटल। अगर आप इस साइड से देखोगे तो यू कैन सी ऑल द ग्रीनरी यहाँ पे। इनफैक्ट एप्पल ट्रीज वगैरह भी अगर आप देख सकते हो तो इसमें छोटे छोटे से एप्पल्स हैं या नाशपाती, आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, बट बहुत सारे फ्रूट्स वाले ट्रीज हैं यहाँ पे। वो नींबू का पेड़ है, ये मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाते हैं।
आपको कैमरे में नहीं दिख रहा है गाइस, बट ये नींबू का पेड़ है। एंड लेट्स गो इनसाइड आवर रूम। सो जैसे ही आप एंटर करते हो रूम में गाइस, यू हैव गॉट दिस अलमीरा जिसमें आप अपना सारा सामान रख सकते हो। यू हैव गॉट अ टेबल जहाँ पे आप अपने स्लीपर्स वगैरह रख सकते हो। एंड देन वी हैव गॉट अ फ्रिज ओवर हियर, एंड देन वी हैव गॉट अ बिग मिरर ओवर हियर इन द फ्रंट जिसमें आप पूरी अपनी शक्ल देख सकते हो। You have got a TV unit over here, and this is going to be our room. We have got bed, one king size bed. ये यहाँ पे हमारा वॉशरूम आएगा। यहाँ पे आप साइड में साइड टेबल रखा हुआ है जिस पे आप सामान वगैरह रख सकते हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर बेड। एंड अगर सबसे बेस्ट पार्ट इस रूम का अगर मैं दिखा दूँ गाइस, सो दैट इज़ गोइंग टू बी दिस बालकनी। Let me show you बाहर का व्यू। So guys, अगर आप बाहर आओगे, so this is how our balcony looks। और अगर मैं आपको दिखाऊं, so ये मेरा व्यू है जो कि मेरे बालकनी से है, जहाँ पे ब्यास रिवर जो है वो सामने हमारी दिख रही है। एंड जो बालकनी है वो हम सबके अटैच्ड है। सो पंकज एंड भाभी आर स्टेइंग इन जस्ट इन द नेक्स्ट रूम, एंड दिस इज़ हाउ आवर रूम लुक्स फ्रॉम इनसाइड। काफ़ी स्पेशियस है गाइस, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दिस व्यू फ्रॉम आवर बालकनी। एंड द ओनली थिंग विच इज़ लैकिंग इन दिस पर्टिकुलर रूम इज़ you have not got any kind of fans or AC। so आपको एक टेबल फ़ैन वो देते हैं। so इस टेबल फ़ैन से ही आपको I mean थोड़ा AC के साथ एडजस्ट करना होगा, बिकॉज मौसम इतना प्लेजेंट रहता है कि यू डोंट रिक्वायर कुछ भी I mean AC या फैंस की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती आपको। so that was our room tour guys, and this hotel is with the name of, as I mentioned before, Himalayan River Resort के नाम से ये होटल। and yeah, that was our room tour guys। देखो मैं कहाँ पे आई हूँ। so मैंने आपको दिखाया था मेरे होटल के व्यू से पास में एकदम पानी है। so I am standing at this place, just look at that guys, it's looks so awesome। I mean वेदर भी अगर आप देखोगे तो पूरे बादल छाए हुए हैं, एंड देन बारिश भी होने वाली है। I'll show you पीछे से कैसा दिखता है। just give me 1 minute। हाँ, just look at this guys, just मेरे होटल के सामने है ये, एंड दिस इज़ द व्यू। यहाँ पे ज्ञान, पंकज, मीशा सब फोटो खिंचवा रहे हैं। देयर इज़ अ फोटो सेशन गोइंग ऑन, बट दिस इज़ आई डोंट नो, कैमरा में शायद आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, बट आई कैन जस्ट टेल यू कि इतना ऑसम व्यू है ना यहाँ का। यहाँ पे हो रहा है फोटोशूट, चश्मा वश्मा लगा के भाभी हमारी लग रही है हीरोइन। और अभी थोड़ी देर के लिए मीशू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ज्ञान को दी गई है, तो ज्ञान मीशू को देख रहा है कि बस वो पानी के पास में ना जाए। का पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना, आई मीन
थोड़ा सा भी अगर छींटा पड़ रहा है ना तो यू कैन फील कि कितना ज़्यादा ठंडा हो रखा है पानी। एंड लुक एट दी वेदर गाइस, एकदम काले बादल छा रहे हैं और इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही है ना अभी। एंड वी आर जस्ट एंजॉइंग फॉर सम टाइम। हम यहाँ पे बैठ के फ़ोटोग्राफी और सब कर रहे हैं यहाँ पे बैठे। और एंड अगर आप जस्ट मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द ब्रिज। इस पे से आके फिर हमारा होटल आता है। सो उस ब्रिज पे हम चढ़ के आए थे। जब हम चढ़ के आ रहे थे तो हमें बहुत डर लग रहा था कि कहीं वो ब्रिज गिर ना जाए, बट बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी उस ब्रिज से आ जाती है। एंड अनफॉर्चुनेटली उस ब्रिज को क्रॉस किए बिना आप हमारे होटल नहीं पहुँच सकते हो। एंड वो हैंगिंग ब्रिज है गाइस, वो लिटरली हिलता रहता है और उसको देख के इतना डर लग रहा था मेरे को कि अगर, और उसके जस्ट नीचे पानी है उस ब्रिज के, तो जस्ट इमेजिन। बट इट्स अ लवली स्पॉट। मैं आपको ब्रिज भी दिखाती हूँ। देखिए ये ब्रिज है, इसके ऊपर से जब गाड़ी आती है तो लिटरली ये ब्रिज हिलता है। एंड ये रहा मेरा होटल जो कि हिमालयन रिवर रिजॉर्ट के नाम से है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, द वेदर इज़ सो गुड। एंड वो मेरा होटल और ये सामने पानी एंड ऊपर पहाड़ एंड लुक एट द मौसम। आई मीन माई कैमरा इज जस्ट नॉट डूइंग जस्टिस, बट आई एम श्योर अगर आप कभी आएंगे मनाली तो दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट रिकमेंडेड होटल फॉर श्योर, विच इज़ गोइंग टू बी हिमालयन रिवर रिजॉर्ट। एंड अब यहाँ पे देख सकते हैं दो लोगों की दोस्ती, टू बेस्ट फ्रेंड्स जो कि आपस में फ़ोटो खींच रहे हैं। एंड लुक एट द फ्लो ऑफ वाटर गाइस, जितना रात होता जाता है ना उतना कहते हैं कि पानी का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। एंड लुक एट द फ्लो ऑफ दिस वाटर, बट इट्स वर्थ स्टेइंग एट दिस पर्टिकुलर रिजॉर्ट गाइस। अगर आप उसके ऊपर भी देखोगे तो फिर आपको मैगी पॉइंट वगैरह सब कुछ यहीं पे ही मिल जाएगा। एंड इवन मेरे होटल के जस्ट नीचे ही जहाँ पे पार्किंग है, जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे ही मैगी पॉइंट्स वगैरह भी बना रखे हैं जहाँ पे आप मैगी, चाय वगैरह सब कुछ खा सकते हो। सो या, और ये हाईवे भी यहीं से जा रहा है। सो वी आर नॉट स्टेइंग एग्जैक्टली एट मनाली। सो मनाली से 15 किलोमीटर पहले पड़ता है ये जो रूट है। तो अगर आप कभी मनाली आओगे तो गाइस प्लीज़ आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू स्टेइंग इन दिस पर्टिकुलर होटल। गाइस मनाली जैसे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे प्लीज़ बॉटल्स वगैरह नहीं डालें तो बेटर रहे, क्योंकि बहुत गंदा हो जाता है। एंड इसको साफ़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड ट्रस्ट मी, लोग यहीं पे ऐसे बॉटल्स छोड़ के चले जाते हैं। सो प्लीज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट कि जो लोग भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं प्लीज़ इन बॉटल्स को डस्टबिन में डाला करें, बिकॉज उसका अट्रैक्शन उस जगह का पूरा ख़त्म हो जाता है। बट ये ना पानी बर्फ़ के पानी से बिल्कुल कम नहीं है। गलती से मेरा पैर सिर्फ इस पानी में पड़ गया था एंड मेरे पैर लिटरली सुन्न हो गए। सो और अभी क्योंकि शाम होती जा रही तो टेम्परेचर भी काफ़ी कम होते जा रहा है। सो अभी थोड़ी सी ठंड होने लग गई है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मुझे कभी कभी लगता है मनाली इंडिया का ही पार्ट है ना, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ जहाँ पे इतनी गर्मी, मनाली में लिटरली इतनी शाम को इतना प्लेजेंट और इतना ठंडा हो जाता है वेदर। सो I mean, amazing. This is the view of our hotel in the evening. यार मैं चाय नहीं लूंगी। एंड अब हम जा रहे हैं इस छोटे से कैफेटेरिया में जो कि हमारे होटल के सामने है, थोड़ा चाय और मैगी वगैरह खाने के लिए। हमने किया है एक मैगी ऑर्डर और ये रहा हमारा मैगी विद द व्यू। सामने पानी, यहाँ पे टेबल और उसके साथ टेस्टी मैगी। ये मेरा पूरे होटल का व्यू होने वाला है। और अगर बाहर से मैं आपको दिखाऊं तो इतना सुंदर लग रहा है ना। आई मीन ऊपर पूरे काले बादल हो गए हैं तो लग रहा है बारिश होने वाली वैसे भी। और अगर आप इस साइड देखेंगे तो इनका ये टेंट एरिया है जहाँ पे आपके कैंप्स वगैरह है। सो अगर आप चाहो तो कैंप भी ले सकते हो, या अगर आपको चाहिए तो आप होटल्स वगैरह भी ले सकते हो। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें क्योंकि गार्डन वगैरह काफ़ी बहुत ज़्यादा है तो फिर मच्छर वगैरह की बस प्रॉब्लम है यहाँ पे।
Otherwise, the hotel is beautiful from inside. एंड बाहर भी देखिए बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है. यहाँ पे अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे झूले वगैरह भी लगा के रखा है. और अगर बैठने की एरिया यहाँ पे, अगर आपको कैंप फायर वगैरह करना है तो कैंप फायर करने के लिए दिया हुआ है. प्लस अगर आपको बैठने के लिए चाहिए तो यहाँ पे लकड़ी से नेचुरल तरीके से एकदम टेबल बनाया है. एंड यहाँ पे साइड में भी अगर आप देखें तो फिर झूला लगाया हुआ है. अगर आप चाहो तो आप चिल कर सकते हो फैमिली के साथ, यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ. कैंप्स को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है. चलो इधर देखो, इधर देखो. उधर 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 So it's beautiful and a perfect place to visit with your friends and family, guys. धीरे धीरे बारिश स्टार्ट हो गई है. मैंने बताया था कि काले बादल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा. ऊपर देखिए अब बारिश स्टार्ट हो गई है. तो थोड़ा अगर इस टाइम पे अगर आप ट्रैवल करते हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है. अदरवाइज़ मेरे टाइम पे जब मैं ट्रैवल करी थी तो उस टाइम पे इतना बारिश नहीं हो रही थी, तो फिर दिक्कत नहीं आई थी हमें वैसे. सो गाइस, वी आर ऑल वेरी मच टायर्ड. अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड देन सी इवनिंग का क्या प्लान रहता है. And I'll just go ahead and sleep for an hour or two and then we'll see what needs to be done. And yeah, that's all about this vlog, guys, and I'll be meeting you guys in my next vlog. Till then, please subscribe to my channel if you haven't done so, and please take care of yourself and your family, and I love you guys. Bye bye.